اسرائیل اور حماس کے درمیان کشیدگی کے بعد غزہ میدان جنگ بن گیا۔ صہیونی فوج کے فضائی حملوں میں شدت آ گئی۔ غزہ میں رہائشی عمارتوں سمیت 426 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ وحشیانہ حملوں میں بچوں سمیت 256 فلسطینی شہید اور 1788 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف حماس کے راکٹ حملوں میں ہلاکت اسرائیلیوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 1800 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق مرنے والوں میں 26 فوجی بھی شامل ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان کشیدگی کے بعد غزہ میدان جنگ بن گیا۔ راکٹ حملوں کے بعد صہیونی افواج کے فضائی حملوں میں شدت آ گئی۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں رہائشی عمارتوں سمیت 426 مقامات کو نشانہ بنایا۔ صہیونی افواج کے وحشیانہ حملوں میں بچوں سمیت 256 فلسطینی شہید اور 1788 زخمی ہوئے۔ دوسری طرف حماس کے راکٹ حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی۔ 1800 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق فوجیوں سمیت 750 شہری بھی لاپتہ ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے پورے ملک میں سول ایمرجنسی نافذ کر دی۔ نیتن یاہو نے فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حماس سے بدلہ لیں گے، یہ جنگ طویل اور مشکل ہوگی۔ ادھر امریکہ نے اسرائیل کی حمایت اور دفاعی ضروریات پورا کرنے کا اعلان کیا ہے، تو دوسری طرف چین سمیت متعدد عالمی رہنماؤں نے دونوں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی قابض فوج نے گنجان آباد فلسطینی علاقوں پر بمباری مزید تیز کر دی ہے۔ تازہ صہیونی حملوں میں 14 منزلہ رہائشی عمارت کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا ہے۔ جدید لڑاکا طیاروں کی بمباری کے بعد رہائشی عمارت چند سیکنڈز میں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مختلف حملوں میں اب تک 230 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد زخمی ہیں، جن میں سے 200 سے زائد کی حالت تشویشناک ہے۔ حماس کے آپریشن کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ فلسطینی عوام کو قابض اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ فلسطینی صدر نے سیکیورٹی حکام کو فلسطینیوں کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے فوری طور پر اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے کہا کہ فلسطینی قائدین سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ حماس کا حملہ اسرائیلی مظالم کا جواب ہے۔ امریکہ نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے حملوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت اور دفاعی ضروریات پوری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے رابطہ کیا اور کہا کہ امریکہ اسرائیل کو تعاون کے لیے تمام مناسب ذرائع دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل مخالف کسی بھی دوسرے فریق کو صورتحال کا فائدہ اٹھانے پر خبردار کرتا ہے۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہماری انتظامیہ کی حمایت مضبوط اور غیر متزلزل ہے اور ہم صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے فلسطین کی صورتحال پر امریکہ، یورپی یونین، مصر، قطر اور اردن کے ہم منصبوں سے ٹیلی فون پر رابطے کیے ہیں، جس میں فریقین کے درمیان کشیدگی روکنے اور انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سمیت اردن، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو کسی طور پر یہ قابل قبول نہیں کہ فلسطینیوں کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا جائے۔ فریقین کو انسانی عالمی قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے صورتحال کو مزید تشدد سے بچانے کے لیے عملی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास तशरफ कर लिया। इजलास में गजा और इसराइल की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने फ़रक़ीन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों ने गजा पट्टी पर इसराइली हमले की मज़म्मत की और दोनों फ़रक़ीन को सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। पाकिस्तान का फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और आलमी बिरादरी से जंगबंदी का मुतालबा किया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल की कशीदा सूरत हाल से अवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। खूरेज़ी और इंसानी जानों के ज़िया से रोकने के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। आलमी बिरादरी मसले का पुरअमन हल निकालने के लिए काम करें। वज़ीर आज़म अनवर उल्लाह काकर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन दो रियासती हल में मौजूद है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात मसला फ़लस्तीन को हल करने की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हैं। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट भी सामने आया है। कहते हैं कि इसराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। हक़ खुद इरादियत की महरूमी पर और क्या तवक्को की जा सकती है। इसराइली काबिज़ अफ़वाज के हमलों के बाद आखिर क्या रद्द-ए-अमल आता। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में लिखा कि दुनिया तस्लीम करे, मसला फ़लस्तीन के लिए पायदार अमन की ज़रूरत है। ख़ित्ते में अमन के लिए गैर कानूनी कब्ज़ों का ख़ात्मा किया जाए। खत्ते में अमन के लिए गैर कानूनी कब्जों का खात्मा किया जाए। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इज़हार किया है। कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की हमदर्दियाँ और दुआएं फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। तवील अरसे से फ़लस्तीनी अवाम जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी मनसब फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून आज लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग में जलसा करेगी। जलसे में चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज खिताब करेंगी। जलसे के लिए 25 फुट बुलंद और 60 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। जलसागाह में 20,000 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानिब नुमाइंदा अब तक राना अशफाक से। जी राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम नून सदर लाहौर की जानिब से जो है वो ठोकर न्याज बेग में जो है वो जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनान की जो है बड़ी तादाद भी जलसागाह में मौजूद है। जैसा कि जो है वो जलसा जो है वो शाम को होगा, जबकि जलसागाह में 20,000 से के करीब जो है वो कुर्सियां लगा दी गई हैं। जबकि स्टेज की बात करें तो स्टेज जो है वो तकरीबन 60 फुट जो है वो लंबा और 20 फुट जो है बुलंद जो है वो स्टेज तैयार कर लिया गया। जबकि मुस्लिम नून की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ठोकर न्याज बेग वाला जो जलसा होगा ये 21 अक्टूबर होने वाला मीनार पाकिस्तान वाला जो जलसा होगा उसकी जो है उससे पहले जो है ये बड़ा पावर शो करने का दावा किया जा रहा है। जबकि साथ ही साथ मैं यहाँ पर इजाफा करता चलूँ कि रात गए जो है वो ख्वाजा इमरान नज़ीर और जबकि मरियम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग में आज जलसा करेगी। जलसे से चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज खिताब करेंगी। 25 फुट बुलंद और 60 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। जलसागाह में 20,000 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे राना अशफाक। नवाज शरीफ कौम और मुल्क के लिए वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर उनका भरपूर इस्तकबाल होगा। मुस्लिम नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के गुज़श्ता दौर इक़्तिदार में आटा चीनी समेत हर चीज़ सस्ती थी और मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन था।
लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जब हमारा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ था तब आटा, गैस, चीनी और दवाई सस्ती थी। मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना तब भी अवाम को रिलीफ मिला। ये बताएं कि 3 साल में बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क में आटा, चीनी किसने सस्ती की थी? नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2% पर थी। इन नालायकों के, इन चोरों के, इन झूठों के इस करप्ट टोले की वजह से महंगाई की शरह 26% हुई। मरियम औरंगजेब का कहना था कि महंगाई है, मुश्किलात हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। नवाज शरीफ सिर्फ आप लोगों की गुर्बत, महंगाई और दुख दर्द खत्म करने वापस आ रहा है। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि वो जब घर आएगा तब इसकी माँ और इसकी बीवी घर नहीं होगी, मगर वो आपके लिए और इस मुल्क के लिए आ रहा है। आपको भी पता है, हमारे मुखालफीन को भी पता है, जिन्होंने नवाज शरीफ को साजिश के जरिए निकाला, आज जब वो वापस आएगा उसकी माँ उसके घर नहीं होगी। आज जब वो वापस आएगा उसकी बीवी उसके घर नहीं होगी, लेकिन वो आप लोगों की खातिर, मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, नौजवान की नौकरी की खातिर, सस्ता आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की खातिर, आप लोगों को रिलीफ देने की खातिर मुल्क वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को आप सब पाकिस्तान में महंगाई और दहशत गर्दी को खत्म करने का इस्तकबाल करेंगे, जबकि एक चोर 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहा, जिससे मुल्क बदतरीन हालात का शिकार है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मेरा मुखालिफ कैद हो और मैं जलसे करूं, मज़ा नहीं आएगा। अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के भी खुले होने चाहिए। जब कमज़ोरियों का जिक्र करता हूं तो कहा जाता है कि इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहता हूं। फजलुर रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो मेरी रिवायात हैं, मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। हर मसले का हल इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो ताकि अवाम की खिदमत कर सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि फजलुर रहमान जमहूरी सियासतदान है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन के मुखालिफ हैं। कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की अच्छी तैयारी नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेरे तंजीम है मुल्क भर में, इंशाअल्लाह ताला हमने अपना मेहनत करना है, कैंपेन करना है, घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है ताकि हम अपना मंशूर पे, अपना नजरिया पे अमल कर सके और अवाम को इस मुआशी, इस मुश्किल वक्त में कोई मदद दिलवा सकते हैं। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, सिर्फ एक सियासी जमात है जो इलेक्शंस के लिए हर वक्त तैयार होता है। इनफैक्ट हम तो बहुत जल्दी में है कि इलेक्शंस हो जाए और हम अवाम के खिदमत कर सकें। मुल्तान में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। डाकुओं ने अपने बचाव के लिए फायरिंग भी की। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको मुल्तान से, जहां डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। डाकुओं ने अपने बचाव के लिए फायरिंग कर दी। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया है। मुल्तान में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए हैं। डाकुओं ने अपने बचाव के लिए फायरिंग भी की। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अपडेट करें आपको मुल्तान में शालीमार मेट्रो स्टेशन के करीब रात गए डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। डाकुओं ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग भी की। डाकुओं ने शहरियों को डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। अपडेट करें आपको मुल्तान से। डॉल्फिन फोर्स ने डाकुओं को शहरियों से छुड़वाया और थाना गिलगिश्त मुंतकिल किया है। मनाज़िर आपके सामने स्क्रीन पर, जहां डाकू आवाम के हत्थे चढ़ चुके हैं और आवाम उसकी दुर्गत बना रहे हैं। उमैर अली खान से मज़ीद जान लेते हैं। उमैर, ये क्या वाक़या हुआ है? ये शालीमार मेट्रो स्टेशन के करीब ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर 2 डाकुओं ने जो है वो डकैती की कोशिश की, जिस पर शहरियों ने उनको दबोच लिया। डाकुओं ने अपने बचाव के लिए मौके पर फायरिंग भी की, जो कि एक कार सवार को जो है वो बाल बाल बचाया फायरिंग से। शहरियों ने इन दोनों डाकुओं को दबोचा और उसके बाद इनकी खूब दुर्गत बनाई है, जिस पर डॉल्फिन पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंच गई। डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों ने डाकुओं को शहरियों से छुड़ाकर जो है वो थाना गुलगश्त मुंतकिल किया, जहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी।
उमर अली खान हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 23 दिन बाकी हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला इस वक्त जारी है। डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 23 दिन बाकी रह गए हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। ज़िला इंतजामिया की जानिब से शकरगढ़ में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 21 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीएसपी सर्कल शकरगढ़ राय एहसान अली के मुताबिक सिटी थाना शकरगढ़ की हदूद से 21 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्रैकडाउन रियाज मार्केट, दीनपुर रोड, दरमान फाटक और सब्जी मंडी के इलाकों में किया गया। अफगान बाशिंदों पर फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को जुडिशल रिमांड पर नारोवाल जेल भिजवा दिया गया। गिरफ्तार अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर शकरगढ़ में मुकीम थे। ज़िला इंतजामिया की जानिब से शकरगढ़ में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 21 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए हैं। डीएसपी सर्किल शकरगढ़ राय एहसान इलाही के मुताबिक सिटी थाना शकरगढ़ की हदूद से अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद से गैर कानूनी मुकीम महाजरीन के इनखला के लिए घरों और कारोबारी मराकज़ में तंबीही पैम्फलेट्स तकसीम किए गए हैं। पैम्फलेट्स में घरों और फ्लैटों में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से घर और फ्लैट खाली करवाने की हिदायत की गई है। किसी भी घर फ्लैट में गैर मुल्की पाए गए तो कार्रवाई मालकान के खिलाफ होगी। हम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कोयटा के नवाही इलाके सोरेंज माइंस एरिया में धमाका हुआ है। धमाके में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर शब्बर मिर्जा जा बहाक हो गए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ है। कोयटा का नवाही इलाका सोरेंज माइंस एरिया जहां धमाके की इत्तलात हैं। धमाके में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर शब्बर मिर्जा जा बहाक हो गए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। अफसोसनाक खबर है कोयटा से, जहां के नवाही इलाके सोरेंज माइंस एरिया में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर शब्बर मिर्जा जहां बहाक हो गए हैं। ब्यूरो कोयटा नूरुल्लाह बुगटी से हमने इस बारे में बात करने के लिए रब्ता किया है। नूरुल्लाह, बताइएगा वाक़े के हवाले से, और जो जख्मी शख्स है वो कौन था? जी बिल्कुल, ये सोरेंज का माइंस एरिया, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं शब्बर मिर्जा, ये उस फील्ड की तरफ जा रहे थे कि सड़क किनारे नस बम जो है उनकी गाड़ी के करीब फट गया, जिसके नतीजे में जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं शब्बर मिर्जा वो मौके पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि उनके साथ जो उनका ड्राइवर है वो जख्मी हो गया है। वाकई की इतला के बाद वहाँ पर लेवीज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो रवाना कर दिए गए हैं, और लाश और जो जख्मी है उसको कुछ देर बाद यहाँ बताया जा रहा है कि कोयटा सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी, नूरुल्लाह बुगटी हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान के शिमाली इलाकों और आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले हौलनाक ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। इस बदकिस्मत दिन 70,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा-ए अजल बने और लाखों अफराद बेघर हुए थे। 8 अक्टूबर 2005 का सूरज पाकिस्तान पर कहर बनकर उभरा। वो सुबह मुल्क के बालाई हिस्सों में क़यामत बनकर आई। 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले ने कई शहरों को अपनी लपेट में ले लिया। देहात के देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। हजारों अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। शुमाली इलाका जात आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बाग और कई दूसरे शहर, जबकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके बडग्राम, मानसहरा और एबटाबाद सब खंडरात में तब्दील हो गए। पहाड़ों ने अपने ही लोगों को निगल लिया। इस्लामाबाद में 10 मंजिला इमारत मार्गला टावर मलबे का ढेर बन गई। क़यामत खेज ज़लज़ले से 70,000 से ज़ायद अफराद, जिनमें बच्चे, बूढ़े, मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, मलबे तले दब कर जाँ बहक हो गए। 1.25 लाख से ज़ायद जख्मी हुए, जबकि 30 लाख अफराद बेघर हो गए। सबसे ज्यादा तबाही मुजफ्फराबाद में हुई, जहाँ इमारतें मलबे का ढेर बन गयी। आज़ाद कश्मीर में 2005 के ज़लज़ले में तबाह होने वाले 2800 तालीमी
इदारों में से 1500 से ज़ायद स्कूलों की तामीर 17 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। ज़लज़ले से कई मुतासरा अफराद अभी तक दरबदर हैं और 17 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक उनकी मुकम्मल तौर पर बहाली ना हो सकी। हर साल 8 अक्टूबर का सूरज ज़लज़ला मुतासरीन को अपने प्यारों के खोने का सदमा, बेघर होने का दुख और माजूरी के गम को ताज़ा कर देता है। आयशा नाज, इस्लामाबाद। अब तक 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले ने जहां खौफनाक तबाही लाई, वहीं हज़ारों माओं से उनके लख्ते जिगर भी छीन लिए। मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके धनी की एक माँ ऐसी भी है जो आज भी अपने खोए हुए बेटे की राह देख रही है। कहीं सिसकियाँ, कहीं आहें, कहीं अपने वालिदैन को पुकारते बच्चे और कहीं अपने बच्चों को ढूंढती माएँ। 2005 के हौलनाक ज़लज़ले ने अनगिनत माओं से उनके नौनिहालों को जुदा कर दिया और उन्हें उम्र भर का गम दे दिया। मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके धनी माई साहिबा की उम्र रसीदा माँ जुबैदा बीबी उन माओं में से एक है जिनका 18 साल जवान बेटा सिद्दीक मेहनत मजदूरी के लिए घर से ऐसा निकला कि आज तक वापस न लौटा। इंतजार दिनों से हफ्तों, हफ्तों से महीनों और महीनों से बरसों में बदल गया, लेकिन इस माँ को अपने सिद्दीक के जिंदा होने की उम्मीद आज भी है। बच्चे का नहीं पता लग गया, फिर ऐसा सुन रहे बच्चे का राह देखते रहे कि पूछा दुए को पूछा नींद दिखिया। जुबैदा बीबी का कहना है कि मेरा दिल कहता है कि मेरा बच्चा जिंदा हो, मुझे मिले और मैं अल्लाह से क्या मांगूं। अब बाद सारे अस्पताल बिच अगले फेरिया जी तुसी नेक बच्चे ठाए इस तरह नेक कोई उन्हें बच्चे मिले, उन्हें पूरी अस्पताल आले बहरिया उन्हें आखे तुसी बच्चा सियाणो बच्चा नहीं। आंखों में आंसू, हाथों में अपने प्यारे की तस्वीर लिए आहो बका करती ये माँ आज भी दुआ गो है कि एक दिन का सूरज ऐसे तुलू हो कि उसके घर का महताब, उसका बिछड़ा बेटा वापस आ जाए और उसके गले लगकर इस बिछड़ने वाली 18 सालों की जुदाई का दुख उससे बयान कर सके। अशफाक हुसैन शाह, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। अब तक मीरपुर आज़ाद कश्मीर की जिला इंतजामिया ने 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के शोहदा की बरसी के मौके पर क्रिकेट स्टेडियम से चौक शहीदा तक वॉक का एहतमाम किया। वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर चौधरी अमजद इकबाल ने की, जिसमें रेस्क्यू, शहरी दिफा, फायर ब्रिगेड, सरकारी इदारों के अफसरान और तलबा तालिबात ने भी शिरकत की। रैली के शुरा ने शोहदा के गमज़दा खानदानों से इज़हार हमदर्दी के लिए हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। 8:52 पर सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्क में क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 साल बीत गए। PDAE की जानिब से कुदरती आफात से बचाव के लिए लाहौर में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। PDAM के ज़ेर एहतमाम कुदरती आफात से बचाव के लिए आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। नासिर बाग से टाउन हाल तक आगाही वॉक में PDAM में ज़िलाई हुकूमत और दीगर शोबाए जिंदगी से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर तर्जमान PDAM ने कहा कि 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान की तारीख का सियाद तरीन दिन है। इस दिन 1 लाख अमवात और 30 लाख शहरी मुतासर हुए। इमरान कुरैशी ने कहा कि बिछड़ जाने वालों के लिए दुआ के साथ ये दिन हमें कुदरती आफात से निपटने की तरगीब भी देता है। 13 अक्टूबर तक डीसीज की ज़ेरे निगरानी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। सूबा भर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों को कुदरती आफात से बचाव के हवाले से आगाही देगा। राना अशफाक अहमद, लाहौर। अब तक अफगानिस्तान के सूबे हरात में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2000 से तजावज़ कर गई। अफ़गान वज़ारत आफ़ात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान के सूबे हिरात में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले से 9240 अफराद ज़ख्मी हुए। 1328 मकानात को नुकसान पहुँचा। ज़लज़ले से जिंदा जान और गोरियान अजला के 12 देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तालिबान की अबूरी हुकूमत आलमी बरादरी से फौरी मदद की अपील की है। तालिबान की अबूरी हुकूमत ने आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकतों पर अफसोस का इज़हार किया। अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा कि ज़लज़ले में अपने प्यारों को खोने वालों के गम में शरीक हैं। अपडेट करें आपको, अफगानिस्तान में ज़लज़ले से खोने वालों के दुख में बराबर के शरीक है, ऐसा कहना है मरियम नवाज का। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले में अपने प्यारों को खोने वालों के गम में शरीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि ज़लज़ले में अपने प्यारों को खोने वालों के गम में हम बराबर के शरीक हैं।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।